Hello everyone. So this is the video in which I'll be explaining you the difference between the DNA, chromatin, chromosome, gene, and allele. So often when we start studying biology, so we get confused about these terms. So we are not able to understand what is the difference between all these. Why are they are referring the same thing with different names? What is exactly gene? Where it is located? So the answer to all these questions will be there in this video. So it's a very small topic and it is very essential because when you start studying biology and specifically molecular biology, you cannot proceed before getting to know the difference between these two. So let's get started. So first, let's start with DNA. So DNA is genetic material and it stands for deoxyribonucleic acids, and it's present in the nucleus of our cell. And it is made up of nucleotides. So its DNA is basically the polymer of nucleotide. So it consists of nitrogenous bases which are attached to sugar and phosphate, and it forms a double helix structure. So there are 2 hydrogen bonds between adenine and thymine, and 3 hydrogen bonds between guanine and cytosine. These are all the purines and pyrimidines, and this is a double helix structure. So DNA basically is 6.6 into 10 to the power 9 base pairs, or 2.2 meters long thread. So you can imagine it is 2.2 meter long thread, and our size of the nucleus, not the cell, is around 5 micrometers. So the 5 micrometer cell, we are not able to see the cell with our naked eye. Of course, the DNA has to be packed in the nucleus. So how can we pack this long thread in a very small size of a nucleus? We cannot see the cell, but we know the 2.2 meter long thread is very, very long. So to enable that, to accommodate this long thread, we need the coiling, or we need the packaging. So similarly, like a telephone wire, it gets coiled. So DNA also gets coiled multiple times. So what basically happens? High compaction or packing with the help of histone proteins. So this is how the DNA is basically packaged, and this basically all the terms which is called chromosome, chromatin, everything is DNA, but these are the different forms of DNA or the packaged DNA with the help of histone proteins. So this is DNA, which is double helix. It starts packaging, and it starts packaging with the help of histone protein. So remember one thing which is very important, and also for the NEET point of view as well, our DNA is a negatively charged molecule. So it contains phosphate group and it is acidic. So whereas the histone proteins are basic proteins, these are rich in arginine and lysine. These are the basic amino acids. So the DNA gets wrapped over the histone proteins, and eventually it gives rise to a chromatin fiber, and it forms a chromosome. So some level of packaging is called chromatin fiber. Further packaging results in the formation of a chromosome. So this is basically the difference. You can see the DNA starts packaging and it forms a chromatin fiber, and the DNA which we observe in the nucleus of our cell is basically the chromatin, and it generally gives a beads on string appearance. These are the beads and these are the strings. So DNA is never completely uncoiled. It definitely exists in coiled form, because otherwise it won't able to exist in our cell. So this high level of packaging or the coiling basically is responsible for the formation of accommodation of DNA inside our very small nucleus, and it eventually forms a chromosome, to which we are very familiar, X-shaped structure. So let's go ahead. This is something extra, and if you are already studied in biology, if 11th class, then you'll probably be familiar with this topic, that chromosomes get aligned in the metaphase. So one reason of DNA packaging is the accommodation, so that the DNA is able to sit in the cell. But another reason is the distribution of the genetic material into 2 cells while cell division. So cell has to divide into 2. So in order for the proper division, in order for the genetic material to be equally distributed between the 2 cells, the chromosomes has to be formed. All right. So the chromosomes are nothing but the DNA. As I said, it is formed by the coiling, extra coiling of the DNA with the help of histone proteins. And the DNA, when the chromosomes are formed, this is basically the genetic material. The entire DNA is already doubled. We have seen the 2.2 long meter thread. It is now 4.4 meter long thread, 4.8 meter. So this basically is important for the division, and the entire chromosome gets divided into 2, and this basically a single portion is called sister chromatid.
So this sister chromatid gets divided, and each sister chromatid is now called the chromosomes in another cell. So what happens basically, the entire this is not necessary कि क्रोमोसोम हमेशा एक्स शेप में ही दिखे. इट्स नॉट नेसेसरी. इट कैन ऑल्सो बी अ सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड जिसको बोलते हैं, वो भी क्रोमोसोम बोलेगा जब हम वो डिवाइड हो चुके होंगे. दिस विल बी डीलिंग, आई बी डीलिंग यू विद दिस अ लिटिल लेटर. तो ये जो चीज हो रही है, मेटाफेज प्लेट बन रहा है, उसमें डिवाइड होने के लिए बन रहा है. इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं. ये तब बनता है जब मेटाफेज में बनता है, ये सेल डिविजन के टाइम पे होता है. ठीक है, तो ये पैकेजिंग के उससे था, इसलिए मैंने बताया. अब जो है नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज जीन. तो जीन क्या है? इट्स अ फंक्शन, इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ फंक्शनल प्रोटीन. तो डीएनए जो होता है वो सब में बहुत सारा आइडेंटिकल है. लाइक आपने सुना ही होगा कि 99% डीएनए सबका आइडेंटिकल होता है. तो अगर सबका डीएनए सेम है, सब अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करता है. दिस विल बी, आई विल बी डीलिंग विद दिस थिंग अ लिटिल लेटर. मैं ये भी समझाऊंगी. तो ये इसमें हो क्या रहा है कि हमारा जीन जो है वो बेसिकली वो वाला डीएनए जो बेसिकली फंक्शनल है. बहुत सारा डीएनए हमारे बॉडी में ऐसा होता है जो रिडंडेंट होता है, जो वेस्ट होता है, मतलब इट इज जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग, जो कुछ काम नहीं कर रहा. वो सब में होता है. एम्फीबियन में भी होता है. बहुत सारा डीएनए के कुछ काम नहीं होता, बट बहुत ही कम डीएनए होता है, बहुत ही कम परसेंटेज डीएनए होता है विच इज बेसिकली इंपॉर्टेंट. इट्स अराउंड 1% और समथिंग, जो बेसिकली प्रोटीन कोड करता है. प्रोटीन्स मीन्स एंजाइम्स. यूजुअली एंजाइम से रेफर करते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को सस्टेन कर रहा है, हमारी पूरी लाइफ को सस्टेन कर रहा है, जो हमारा आई कलर, हेयर कलर को कोड कर रहा है. जो क्रोमोसोम ये रहा, उसमें जो इसको खोलेंगे तो डीएनए मिलेगा. तो इसमें जो सेगमेंट्स होंगे, जो एक सेक्शंस होंगे, ये पूरा एक सेगमेंट हो गया, वो जीन. जीन इज बेसिकली नथिंग बट इट्स अ डीएनए, बट इट इज द फंक्शनल डीएनए. कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज अलील. तो अलील इज ऑल्सो बेसिकली ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन. तो क्या होता है कि अब जिससे मैंने पहले बताया था कि क्रोमोसोम जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स शेप में दिखे. अब ये एक क्रोमोसोम नहीं है, ये 2 क्रोमोसोम है, बट ये डबल नहीं हो रखे हैं, इसलिए वो एक्स नहीं दिख रहे हैं. वो एक सिस्टर क्रोमैटिड को ही क्रोमोसोम बोल दिया. तो अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्स शेप को भी बोल रहे हैं, सिंगल को भी बोल रहे हैं. तो एक्स शेप सिर्फ डबल है, उसको भी बोल सकते हैं, और एक सिंगल वाले को भी बोल सकते हैं. अगर डबल एग्जिस्ट कर रहा है एक ही सेल में, तो हम उसे सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे. अब जो ये सिस्टर क्रोमैटिड अब लेकिन ये जो है, ये 2 क्रोमोसोम, क्योंकि एक फादर से आया, एक मदर है. वी हैव 23 पेयर्स, एंड 23 पेयर्स में एक पेयर में एक फादर के थ्रू होता है, एक मदर के थ्रू होता है. हो सकता है कि आपका हेयर कलर का जीन आ गया है फादर से ब्लैक, और मदर से आ गया है व्हाइट. तो हो सकता है कि आपके जो बेबी हो उसका ब्लैक हो सकता है व्हाइट हो. इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, या हाइब्रिड है, कुछ भी हो सकता है. तो बेसिकली अलील्स जो हैं वो सेम जीन होता है, बट उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. वो कहाँ से आई है? क्योंकि हमारे पास हर क्रोमोसोम के 2 पेयर आने हैं, मतलब 2 पोर्शन आने हैं, मतलब एक आएगा फादर से, एक मदर से. तो इसीलिए इसलिए हर एक जीन की 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी बॉडी में, और वो 2 फॉर्म जो होंगी वो बेसिकली अलील्स को बोले. एक फॉर्म को हम अलील रेफर करते हैं जब हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू सिंस सो लॉन्ग. मतलब मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये जब रेप्लिकेशन के बाद हो गया तो ये 2 क्रोमैटिड बन चुके हैं. इसका मतलब सेल जो है वो डिवाइड, मतलब मेटाफेज में जा चुका है. और जो साइड वाले हैं, जब डिवीजन के पहले होगा या डिवीजन के बाद होगा, मतलब जब रेप्लिकेट नहीं हुआ है डीएनए, तो ऐसे हो सकता है खाली सिंगल क्रोमोसोम. और इसके बाद डिवाइड होने के बाद जब डिवाइड हो गया, 2 सेल में बढ़ चुका, तो एक सेल में ऐसा दिखेगा. तो ये भी क्रोमोसोम ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक क्रोमैटिड है. So this was something which was like a very basic thing, which was the title of the video. All right, तो अभी तक मैंने जो भी कुछ समझाया वो सब था इनके बीच में डिस्टिंक्शन. बट अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना है फॉर सीबीएसई एंड पर्टिकुलरली नीट लेवल, तो आप इसको आगे कंटिन्यू करिए. तो सबसे पहली बात, ये जो मैं अभी डीएनए, जीन, इतना कुछ बोल रही हूँ, जीन आ रहा है, तो ये सबका कुछ सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी पूरी बॉडी इंटायरली डीएनए पे डिपेंडेंट है. अगर हम सेल के नीचे जाते हैं तो हमारे पास डीएनए ही है, जो कुछ भी कर रहा है वो ही कर रहा है. कैसे कर रहा है? यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दिस इन दिस कमिंग वेरी शॉर्ट सेशन. ठीक है, तो सेंट्रल डोगमा जो है हमारी लाइफ का, यही है जो हमारी पूरी लाइफ की एग्जिस्टेंस डिफाइन करता है. तो व्हाट डू वी हैव? वी हैव अ डीएनए व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ सेम थिंग. डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है हमारे बॉडी में, जो कि क्रोमोसोम बने, जो भी बना, उसके ऊपर जीन्स लोकेटेड है.
अब ये जो जीन्स होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं आरएनए में, तो डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए। आरएनए सेम चीज है लेकिन वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, वहां पे थायमिन की जगह यूरासिल होगा। तो ये आरएनए एक बीच का स्ट्रक्चर बनता है और इसके बाद ट्रांसलेशन होती है जो कि प्रोटीन बनाता है। तो ये अभी आपको बहुत न्यू लग रहा होगा अगर आपने स्टार्ट किया है पढ़ना, बट ये सेंट्रल डोगमा है। अब जो प्रोटीन की मैं बात कर रही हूँ वो नॉर्मल प्रोटीन जो हम खाते हैं वो प्रोटीन नहीं है, मतलब बना तो उसी प्रोटीन से। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, वो पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, बट इट इज नॉट द सेम प्रोटीन विच वी आर हैविंग, लाइक मसल वाला प्रोटीन नहीं है ये। जनरली एंजाइम को ही रेफर करता है, मतलब एंजाइम जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीनेशियस ही होते हैं एक्सेप्ट सम आरएनएस, बट जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीनेशियस होते हैं, बट सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। तो जनरली फॉर स्पेसिफिक फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो उनके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, तो दिस इज ट्रू। तो इसीलिए ये प्रोटीन जो बना है कहाँ से, इवेंचुअली जीन से बना है। जो भी फंक्शनल डीएनए होगा वो जीन होगा, जीन आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन जनरली मोस्टली वो एंजाइम्स होते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं जो किसी और तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सैलिवरी अमाइलेज ले लो, वो भी तो कहीं से कोड हुआ होगा, किसी जीन से ही निकला है वो एंजाइम। तो हमारा सैलिवरी अमाइलेज की डाइजेशन कैसे होगा? पेप्सिन ले लो, दुनिया भर के मतलब बहुत सारे एंजाइम्स है हमारे बॉडी में। एक्चुअली अगर आप मतलब वही जो सेल के नीचे आप जा रहे हो, एंजाइम्स और मॉलिक्यूलर मशीन्स, तो वही सब कुछ काम कर रहे हैं। तो एंजाइम्स ही सब कुछ काम करते हैं विच आर कोडेड बाय जीन्स। तो इवेंचुअली हमारी पूरी लाइफ जीन से कैसे आई तो ये चीज बता रहा है। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो नीट लेवल पे एक चीज कभी कभी हो सकता है पूछ ले कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या होता है, मतलब इससे रेलेवेंट कुछ आता है जो कि बीडन एंड टॉटम ने दिया था 1948 में। तो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, दिस इज अ वेरी हाई लेवल कॉन्सेप्ट। 12th में सीबीएसई वालों का इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता, लेकिन हाँ नीट में पूछ सकते हैं, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मतलब मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये सब जीन्स और एंजाइम्स के लिए पढ़ना। तो जीन्स और एंजाइम हाइपोथेसिस जो है बेसिकली वो यही है कि एक जीन एक एंजाइम को कोड कर रहा है। ये पहले आया था, पता कैसे चला कि ये क्यों आया, कहाँ से आया? कि ऐसे आया कि कभी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टडी करते करते आया, जैसे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं अल्कैप्टोन्यूरिया। ये बेसिकली एसोसिएटेड है टायरोसिन मेटाबॉलिज्म से। टायरोसिन इज एन अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है ये, कभी याद रख लो नीट में आ जाएगा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल है टायरोसिन। टायरोसिन और ट्रिप्टोफान और फिनाइलएलनिन, 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक वही बेंजीन रिंग वाला सिस्टम। तो एरोमेटिक वाला अमाइनो एसिड है, इससे बनता है होमोजेंटिसिक एसिड। होमोजेंटिसिक एसिड में यहाँ पर अगर एक एंजाइम होगा जिसको बोलेंगे अल्कैप्टोन्यूरिया, अल्कैप्टोन ऑक्सीडेज, तो वो एंजाइम मिसिंग होता है, तब इससे आगे कहानी नहीं चल पाती, ये आगे के मेटाबॉलिक पाथवे नहीं चलेगा। इसकी वजह से होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट बॉडी में होगा तो इसका मतलब टेस्ट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आपका यूरिन जो है वो डार्क कलर हो जाएगा, कार्टिलेज में खड़ा ये मतलब मिलेगा, आईज में डिपॉजिट हो जाएगा ब्लैक कलर का होमोजेंटिसिक एसिड, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आर्थराइटिस हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। इट्स अ वेरी सीरियस डिसऑर्डर। तो ये सब चीजें होंगी, इसी से हमने डिस्कवर किया था। इससे हमें ये बात पता चली थी कि इसमें जो डिसऑर्डर हो रहा है वो एक्चुअली जीन की प्रॉब्लम से हो रहा है। इसका मतलब जीन जो है वो एंजाइम कोड कर रहा है। तो एंजाइम जीन से आया है, तभी वो जीन खराब था इसलिए एंजाइम खराब हो गया, एंजाइम खराब हो गया तो ये डिसऑर्डर। दिस इज हाउ द डिस्कवर्ड कि जीन और एंजाइम का क्या कनेक्शन है। बट बाद में क्या हुआ, बाद में आ गया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जीन जो है एंजाइम को नहीं बल्कि एक पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। क्यों? क्योंकि एक एंजाइम जो होता है वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स का भी बना हो सकता है। तो अगर उसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड हैं तो हर पॉलीपेप्टाइड के लिए एक अलग जीन होता है। ये दिखा मतलब कि सारे, एक तो ये था कि सारे के सारे जीन जो वो एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर रहे, कुछ कंट्रोल भी करते हैं अदर जीन्स, जैसे रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन तो नहीं बनाते, वो आरएनए तक रह जाते हैं और आरएनए जो है वो कंट्रोल करता है दूसरे जीन को। इट्स अनदर टॉपिक, वेरी वाइड टॉपिक, बट ये है कि सारे जीन्स एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करते। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, लेकिन प्रोटीन्स एंजाइम्स सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वन जीन वन एंजाइम, क्योंकि सारे प्रोटीन सारे के सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन्स तो एंजाइम्स नहीं थे, बनना तो प्रोटीन है। एंजाइम तो हम प्रोटीन को ही रेफर करने के लिए कह रहे हैं कि जनरली एंजाइम बनते हैं बट सारे नहीं होते। और कुछ आरएनए भी होते हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी शो करते हैं, और एक प्रोटीन और एंजाइम जो होता है वो बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। तो अगर ऐसा होगा तो एक एंजाइम में मान लो 2 पॉलीपेप्टाइड है, जैसे उस एंजाइम के अलावा मैं हीमोग्लोबिन का एग्जांपल ले लूं। हीमोग्लोबिन जो है उसकी एक अल्फा चेन होती है, एक
बीटा चेन होती है। तो अल्फा चेन अलग जीन से कोड हो रही है, बीटा अलग से कोड हो रही है, इसीलिए बेटर है कि हम 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड बोले। पॉलीपेप्टाइड, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, मैंने बताना भूल गई, बट पॉलीपेप्टाइड इज अ शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर 2-3 अमाइनो एसिड्स होंगे, 4-5, तो वो पेप्टाइड होगी। अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे तो वो कंप्लीटली प्रोटीन बोलेंगे। दिस वाज अ वेरी एक्स्ट्रा थिंग, बहुत रेयरली आएगा, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नो एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू नो। इसके अलावा एक है जीन और सिस्ट्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, जोहानसन ने 1909 में डिस्कवर किया था दिस वर्ड, नहीं तो पहले हम इसको मेंडेलियन फैक्टर बोलते थे। तो उसके बाद आया जीन, और जीन जो है आजकल हम उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन क्यों? क्योंकि सिस्ट्रॉन इज अ मोर बेटर वर्ड, मतलब इट्स बेसिकली इंडिकेट्स, जीन से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेच ऑफ बेस सीक्वेंसेस दैट कोड्स फॉर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन और 1 ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल एंड अदर रेगुलेटरी फंक्शंस। तो आजकल सिस्ट्रॉन बोला जाता है सेगमेंट ऑफ डीएनए को, जिसको हम कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि वो पॉलीपेप्टाइड चेन भी कोड कर सकता है, एक टीआरएनए भी कोड कर सकता है, राइबोसोमल, ये सब चीजें जो हैं हमारी बेसिकली बहुत जगह इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा डिटेल की टॉपिक है। ट्रांसफर आरएनए जैसे ट्रांसलेशन में चाहिए होता है, राइबोसोमल आरएनए काफी ज्यादा चाहिए होता है, कि राइबोसोम्स बनने होते हैं, उसमें राइबोसोमल आरएनए जाता है। तो राइबोसोमल आरएनए के जो जीन्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो वो आरएनए तक ही रहते हैं, क्योंकि सिर्फ आरएनए ही चाहिए राइबोसोम बनाने के लिए, आगे उसका कोई प्रोटीन नहीं बनना, तो उसका भी एक जीन होगा। तो ऐसे करके, या फिर रेगुलेटरी फंक्शंस भी करते हैं। तो मोर स्पेसिफिक और मोर फॉर्मल टर्म जो है वो जीन को सिस्ट्रॉन बोली जाती है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज न्यू। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। काफी कुछ एक्स्ट्रा भी था, so for NEET level particularly. So if you like the video, please do subscribe, like and share my channel.